Okay, so Sneha, so we'll continue with that lesson, skeleton and movement, and bones wala jo part hai that we had completed in the previous session. So you are very well Yes. aware about the different types of bones, their location, their distribution, the major key points associated with it. है ना, वो हमने complete Yes. कर दिया था. So skeletal system is clear with you. Now in this lesson, because it is about skeleton and movement, so in the beginning, if you remember, हमने movement and locomotion करके उसका meaning understand किए थे with the different types, right? So as a Yes. human body, when we talk about movement and locomotion, so every part of our body shows some or the other movement. Okay, so it's like such an activity which we don't consciously think about. जैसे अपने हाथ पे हिलाते हैं, है ना, खाते वक्त जैसे बातें करते हैं मुंडी हिलाते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ तो my lower jaw is moving, right? So these are all constant movements which keep on taking place in our life. So for all these types of movements, if you are talking only about the voluntary movements for now, internal involuntary movements है वो अलग है. Okay, so for this kind of movements to take place along with the bones, there is another tissue that plays a major role, and वो है muscles, right? So we have another lesson called animal tissues. उसमें हम देखेंगे muscles के structure wise पूरा detail. Okay, here we have to talk about muscles with respect to movement and locomotion. So can you tell me, जैसे अपने bones हैं अपने शरीर में totally 206. Can you tell me how many muscles do we have in our body? ज्यादा होते कि कम होते? ज्यादा होते. It's again a 3-digit number, but more than the bones. 250. थोड़ा ही ज्यादा किया और बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा है. हाँ. 306. फिर भी ज्यादा बड़ा है नहीं. ओके, आई विल टेल. वो है 639. ओके, यस. पूरे शरीर में we are having like, see, when we tell these numbers and all, it is assumed कि adults human being के बारे में बोला जाता है ना. So in the adult human being there are 639 muscles and 206 individual muscle fibers. हाँ, they are thin, but individual muscle fibers को हम count करते हैं. Muscles are present in the form of fibers actually. Okay, muscular fibers करके बोलते हैं. For example, जैसे अपने fingers का देखना, ये bones का नाम क्या है? ये हाँ मुझे पता है. एक मिनट. कार्पल, वो मेटाकार्पल. कार्पल इधर, मेटाकार्पल कार्पल इधर, तो ये क्या मेटाकार्पल. है? वो फैंजिलस. हाँ, हो गया गड़बड़. फैंजिलस ना. ये सर्दी का असर है या मेमोरी का असर है? It is phalanges. हाँ, phalanges. Phalanges. Okay, याद रखना है. ठीक है. Okay, so ये phalanges है. So suppose if I am अभी जैसा my finger, I am moving this. So do you think my muscles are doing it? हाँ, है ना, muscles. phalanges bone के साथ साथ my muscles are हाँ. thinking about a movement. See my thumb, है ना, opposable thumb है. तो इसमें भी movement अगर मैं कर पा रहा हूँ तो it is because of muscles. So you can imagine इतने tiny bones, हर किसी से muscles connected. That's why the movement is possible. Okay, and in bones also we have seen major other parts of the bones also. If you see, हर एक में processes होते थे, transverse process, spinous process. तो हर जगह muscles connected. So that way, if you see throughout the 206 bones of the body, there are muscles connected. इसलिए muscles are more in number. Okay? And these muscles include all the types of muscles. Muscles के तीन type होते हैं. First one is skeletal muscles. Okay, skeletal muscles are voluntary muscles. ये bones से connected रहते हैं. These are the muscles which are under our control. जैसे movement of the fingers and the hands. Okay, movement of the head. These are voluntary actions. ये skeletal muscles. Second one is smooth muscles.
Smooth muscles are involuntary. That means the muscles connected to the heart, the lungs, the liver, the kidneys, which are not under our control. Esophagus में जो peristalsis हो रहा है, muscular contractions, that is not under our control. उसके लिए होते हैं smooth muscles. And third type is cardiac muscles, which are exclusively for the heart. Okay, तो उसका functioning अलग है. Cardiac muscles are the only type of muscles which are branched. तो अभी के लिए 3 टाइप के नाम याद रख. एनिमल टिश्यूज में वी आर गोइंग टू लर्न दैट इन डिटेल. तो skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. So here in this topic, because we are talking about movement and locomotion point of view, we are going to focus on the skeletal muscles and how the movement is brought about with respect to the muscles. ठीक है, यहाँ तक समझा अच्छे से? हाँ. Okay, so let's take a look at the different types of the muscles based on the movement and how they actually work. Okay, so you can see the screen. यहाँ पे देखना, as I said, number याद रखना है पहले 639 muscles. Okay? And उसमें और एक याद रखना है कि which is the largest muscle in the body. You know that? Largest bone कौन सा था? Thighs का. हाँ, तो what was the name of the bone? Femur. Humor. There is no humor. It is Femur. Femur नहीं, femur. Okay, it is femur. Yes, you are making a hybrid. Humerus और femur का मिला के humor कर रही है ना? Okay, so it is femur. ठीक है, याद हो जाएगा, रिवाइज करते रहेंगे. So same way muscles का अगर हम बोलते हैं तो there is a largest muscle in our body. उसका नाम है gluteus maximus. Okay, gluteus maximus नाम का मसल है which is present connected to the back side of the thighs to the butts. उसको gluteus maximus करके बोलते हैं. Okay, so that is the largest muscle in length. ठीक है, वो याद रखना. Okay, now see this types. अभी skeletal muscles के types अगर हम बोलते हैं, so there are 3 types of skeletal muscles you can see over here. सबसे पहले है agonist. Agonist का मतलब है kind of prime movers. Okay, so they bring the initial movement of the part. कि किसी भी body part का voluntary movement for the first time. Okay, तो उसमें example दिया है biceps. You know where are biceps located? Yes. है ना, biceps अपने इधर होते हैं ना, elbow के ऊपर, humerus से connected. Humerus. तो यहाँ पे ऊपर के पार्ट में जो है that is biceps, नीचे जो है वो है triceps. Okay, so you have biceps muscle, tricep muscle. तो जो जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, वो दिखाते हैं ना biceps. Okay, so here now if I want to move my hand, so I am contracting my biceps. तो मेरे हाथ का मूवमेंट पॉसिबल है. तो ये इनिशियल मूवमेंट कर रहे हैं. Okay, and the other type of muscle is antagonist. एक agonist और एक antagonist. Antagonist means whatever the agonist will do, उसका opposite action antagonist है. So in a normal state, when I'm not using my hand, my hands are straight. So biceps are relaxed. Okay, but if I want to move my hand, my biceps are contracted. But ये ऐसे ही नहीं रह सकता है हमेशा. After the work is done, my hand should go back to the normal state. That is brought about by triceps. तो पहले काम करेगा agonist, then उसका opposite काम करेगा antagonist. That's the meaning. Understood this? Agonist and antagonist. Yes. Okay, and then the third type is synergist. They will assist the prime movers. कि जैसे मेन जो मसल्स हैं उनको फंक्शनिंग में असिस्ट करेगा. So there is a muscle called brachialis which will assist the biceps. Okay, brachialis is somewhere connected near the wrist. तो उधर से biceps को assist करेगा. wrist नहीं, sorry, elbow के पास. ठीक है, तो ऐसे करके 3 type of skeletal muscles. Skeletal muscles are also called striated muscles.
Okay, why it is called striated, we'll come to that. Okay, these terms are clear, three types. Yes. Okay, now whenever there is any movement, okay, we are talking about voluntary movement over here. तो कभी भी कोई voluntary movement अगर होता है तो I'll show you this way कि there is suppose one bone like this, okay, and there is another bone next to it. Consider say humerus and radius ऐसे imagine कर, ठीक है? तो एक बोन से दूसरे बोन को मसल कनेक्टेड है like this, just a representative diagram, ठीक है? So whenever such a movement is brought about, one of the bones is stationary, another bone is the movable one. जैसे मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ, okay, so the humerus part is not moving, but the radius part is the one which is moving. Getting it? तो यहाँ से यहाँ जब मसल कनेक्टेड है तो that part of the मसल एक फाइबर की तरह, तो उसका एक एंड स्टेशनरी बोन से कनेक्टेड है तो दूसरा एंड मूवेबल बोन से कनेक्टेड है. सो दैट एंड ऑफ द मसल विच इज अटैच्ड टू द स्टेशनरी बोन उसको बोलते हैं ऑरिजिन. ओके, एंड द ऑपोजिट एंड विच इज कनेक्टेड टू द मूवेबल बोन उसको बोलते हैं इंसर्शन. These words you have to remember. Okay, origin to insertion. Okay, and then दोनों के बीच का जो मिडिल थिक पार्ट है मसल का ऐसे रहता है, टेपरिंग रहता है. तो ये जो थिक पार्ट है मसल का that is called as the belly. Okay, so origin, insertion, belly. Origin is the one connected to the stationary end. Okay, insertion is the one connected to the movable bone. Belly is the middle thick portion of the muscle. ऐसे ये तीन वर्ड्स याद रखना. Okay, and ये पूरा जो मसल है उसमें it is made up of many fibers. Okay, remember we are talking only about the striated muscles now, voluntary movements के लिए. तो ऐसे करके thick fibers होते हैं. So that's why you can see the ends of the muscles are like tapering, pointed, but बीच में thick. So maximum number of muscular fibers are in the belly. इसके वजह से ये जो मसल का शेप है उसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म. Muscles are said to be fusiform in shape. Fusiform का मतलब है it is kind of tapering to both the ends like this. कि दोनों ends में जो है वो pointed. Okay, बीच में ज्यादा से ज्यादा fibers होंगे. तो ये वर्ड्स याद रखना है, origin, insertion, belly, fusiform. Okay, ये पॉइंट्स क्लियर हो गया? Okay, now talking about the working of the muscles. Okay, अभी कैसा है ना कि muscles mostly skeletal muscles they do not work singly. Okay, जैसे cannot depend only on biceps. अगर biceps काम करना है तो साथ में triceps भी जरूरी है. Okay, they are always working in a pair. Okay, and they produce opposite action. जैसे biceps bring about folding, तो triceps will bring extension. कि biceps के वजह से हाथ fold कर रहा हूँ, triceps के वजह से हाथ extend कर रहा हूँ. इसलिए biceps को बोलते हैं flexors and triceps को बोलते हैं extensors. Okay, so such muscles which bring about opposite action उनको antagonistic muscles करके बोलते हैं. Okay, so एक मसल क्या करेगा, जॉइंट में बोन को बेंड, बोन की तरफ बेंड करेगा, and the other one will pull it back to the normal state. and दोनों जरूरी है, correct? So antagonistic pair में one of the members is generally much stronger than the other pair. Now between biceps and triceps, biceps have to be stronger as compared to the triceps because biceps को actual काम करना है, contraction. Okay, and triceps जो है वो relax करेगा. So basically in every such work if you see, जैसे fingers का भी अगर हम देखते हैं, if I'm moving the phalanges, so there is a muscle connected on the towards the palm side, towards the back side also. तो एक अगर मैं bend कर रहा हूँ तो दूसरा उसको सीधा कर. Getting it? तो both are necessary because if I'm bending the finger तो lifetime ऐसे ही नहीं रह सकता है ना. I have to bring it normally as a straight रखना.
Okay, so muscles generally when they work, their major characteristic is a feature called contraction. कि muscles हमेशा काम करेंगे by contraction. That is a tendency to bring about the work. And after the work is done, the contraction is followed by relaxation. Okay, that's why muscles can only pull and they cannot push the bone. अभी जैसे हाथ का बोन है, एल्बो के आगे towards my palm, can I bend it back side? कभी सोचा है ऐसा? No. नहीं, वो हमेशा आगे की तरफ बेंड करता है. पैर में भी अगर देखेंगे, नीज वाला पार्ट है, तो नीज का थाई एंड द शिंक रीजन, दे कैन ओनली बेंड टुवर्ड्स द बैक. कभी आगे बेंड किया नी को ऐसा, दैट वुड बी डेंजरस, राइट? ओके, तो मसल्स हमेशा क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन. Getting it? So at every joint, if you imagine, there is a particular way in which the muscle functions, and that is the requirement. Okay, so like that, there are some important antagonistic muscles. Let us take a look. First one है flexor and extensor. जैसे अभी हमने देखा biceps and triceps. Okay, तो flexor can bring about contraction by bending या flexion, and extensor can result in straightening या extension. Okay, तो पहला फ्लेक्शन को बेंडिंग बोलते हैं एंड एक्सटेंशन को स्ट्रेटनिंग बोलते हैं. ये दोनों जब करेंगे तो उसको फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर बोलते हैं. ओके, दैट इज द फर्स्ट टाइप. सेकंड टाइप इज एबडक्टर एंड एडक्टर. ओके, एबडक्टर क्या करेगा कि एनी बॉडी पार्ट विल बी मूव्ड अवे फ्रॉम द बॉडी एक्सिस. ओके, जैसे डेल्टॉइड मसल शोल्डर में. ओके, शोल्डर में डेल्टॉइड मसल है, that will move the arm away from the body. Getting it? जैसे अगर मैं क्रिकेट में बॉलिंग कर रहा हूँ, so I have to move my arm away from the body. तो वो deltoid muscle. But if I am moving the arm away from the body, at one point of time my arm should come back near my body. Ultimately, एक position of rest करके होता है. When no work is being done, so where are the joints and the bones present? वो पोजीशन पे लाना जरूरी है, बिकॉज दैट इज द व्हाट यू कैन से द इक्विलिब्रियम पोजीशन. गेटिंग इट? जैसे बेसिक एक्सरसाइज भी करते हैं, स्कूल में पीटी पीरियड हुआ करता था, है ना, तो उसमें से हाथ फैलाते हैं, है ना, साइड अप डाउन वगैरह बोलते हैं. तो व्हेन यू मूव, यू कीप योर हैंड्स लाइक दिस. एक्सरसाइज के लिए इट इज गुड, ऑल मसल्स आर बीइंग वर्किंग, बट ऐसे ही रह जाते हो क्या? स्कूल से निकल के घर तक ऐसे ही आते हैं? नहीं. Getting it? So this is something, it is not in a state of rest. Okay, when you come, put your hands down properly, you are in a state of rest. Okay, तो ये abductor, ये adductor. Getting it? Okay, adductor क्या करेगा? Move the body part towards the body axis. तो अगर मैं हाथ को दूर कर रहा हूँ तो deltoid muscle. अगर मैं हाथों को नजदीक लेके आ रहा हूँ तो it is latissimus dorsi of the shoulder. ये दोनों है abductor and adductor. Is it clear? ये नाम बोल. Latissimus dorsi. Latissimus dorsi है ना? Dorsi. Dorsi. ठीक है? Okay. Next one. Third type is pronator and supinator. Pronator and supinator palms के लिए होते हैं कि मेरे हाथ normally ऐसे रहते हैं, but if I want to move my palm downwards, तो pronate, and supinator will turn the palm upwards. Okay, तो normally जब मैं हाथ नीचे रख के ऐसे चल रहा हूँ तो मैं palms are like this. Okay, but अगर कोई सामने आए जिसको मुझे देना है, okay, तो palm will be downwards, and उसको दे देने के बाद my palm will be upwards. That is pronator and supinator. Correct? Okay. Next है levator and depressor. Okay, levator will raise a body part, depressor will lower the body part. तो इसमें एग्जांपल क्या दे सकते हैं? वॉलंटरी मूवमेंट के लिए यू कैन से फिंगर्स. मंदिर में जाते हैं, कैसे? पूरा बॉडी बेंड करके प्रणाम करते हैं ना. अच्छा, साष्टांग नमस्कार व्हाट यू आर टेलिंग. बट दैट इज द होल बॉडी व्हिच इज डूइंग इट ना. यहाँ पे बॉडी पार्ट है. ओके. ओके, यहाँ पे बॉडी पार्ट है, तो यू कैन से दिस वन फिंगर्स का. हाँ.
करेक्ट. तो लेवेटर विल रेज अ बॉडी पार्ट, डिप्रेसर विल लोअर द बॉडी पार्ट. ठीक है. या जैसे वर्टिब्रल कॉलम से भी कनेक्टेड है. व्हेन यू बेंड, अगर हम पूरा साष्टांग नमस्कार नहीं करें तो वे झुककर नमस्कार करते हैं. हाँ. तो लिवेटर डिप्रेसर के पंडित जी आए आशीर्वाद देने के लिए, नीचे झुक गए, बट ऐसे ही झुके हुए रह जाते क्या? नहीं. राइट. उठते हैं ना हम लोग. दैट इज डिप्रेस. डिप्रेसर की वजह से लोअर करते हैं, लिवेटर की वजह से उठते हैं. ठीक है. तो रिमेम्बर दैट. देन है प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर इज नॉट द वन इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. ओके. यहाँ पे प्रोट्रैक्टर क्या करेगा? इट विल मूव फॉरवर्ड, रिट्रैक्टर विल मूव इट बैकवर्ड. अगेन एल्बो जॉइंट, कि हाथ को दूर किया एंड फिर पीछे लिया. ओके. गले का भी कर सकते हैं ना, आगे पीछे आगे पीछे. हाँ. गेटिंग इट? सो दैट इज प्रोट्रैक्टर, रिट्रैक्टर. गेटिंग इट? ओके. देन है स्फिंक्टर्स. ये रिमेंबर ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमने देखा था. स्फिंक्टर मसल्स. स्फिंक्टर्स में वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी दोनों टाइप के होते हैं. Involuntary muscles internal के लिए, कि stomach to intestine, esophagus to stomach, which are not under our control. हाँ. Okay, but there are two sphincters which are under our control. One is the हाँ. sphincters present in the anus, anus. and the other one हाँ. is the sphincters present in the urinary tract. Okay, so they can open and close as per the requirement, and you know the requirement. Getting it? Okay. हाँ. So sphincter muscles, they are also voluntary. Okay, so anal sphincters, whenever they are open, defecation takes place. Urinary sphincters, whenever they are open, urination takes place. And after the work is done, it has to be closed. So obviously that is voluntary. So opening and closing circular muscles होते हैं वहां पर, they are sphincter muscles. इन सबके टाइप समझा? हाँ. Yes. तुझे समझाते समझाते मेरा भी थोड़ा सुबह का एक्सरसाइज हो गया. Okay. So now ये देखो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है. नाउ वी आर कम टू द एक्चुअल स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द स्केलेटल मसल. ध्यान से सुन. ठीक है. in that animal tissues we are going to learn in detail about the structure of a striated muscle. Okay, but यहाँ पे हम लोग उसका physiological part भी study करेंगे. Okay, because we have to talk from movement point of view. So you know very well कि skeletal muscles जो है इनका functioning that is brought about by only contraction. Okay, and striated muscles जो होते हैं वो they are designed in such a way कि they can bring about vigorous contractions. कि जैसे मैंने फिंगर्स है. ओके, मैंने कॉन्ट्रैक्शन किया, माय पाम्स आई कैन क्लोज, आई कैन ओपन इट बैक. इसका मतलब ये नहीं कि वापस क्लोज होगा ही नहीं. आई कैन डू इट एन नंबर ऑफ टाइम्स. करेक्ट. माय मूवमेंट ऑफ द नेक, इफ यू सी, आई कैन डू एन नंबर ऑफ टाइम. डेली लाइफ में तो कितना मूवमेंट करता है, ऐसे एकदम पड़े तो नहीं रहते ना. ओके, तो दिस विगरस कॉन्ट्रैक्शंस आर पॉसिबल. तो इतना जब हम मूवमेंट करते हैं, ओके, तो उसके लिए हमें देखना है कि स्ट्रक्चरली ये स्केलेटल मसल्स में क्या है जिस वजह से इतने मूवमेंट्स पॉसिबल. ओके, सो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वी विल सी नाउ. ठीक है. सो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर का डिटेल्स थोड़ा वो एनिमल टिश्यूज लेसन में भी है, बट हियर वी विल सी वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस लोकोमोशन और मूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो स्ट्राइटेड मसल का एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, इट इज कॉल्ड एज अ सार्कोमियर. Whenever the prefix is sarco, it means muscle. Sarco या फिर मायो, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं ना, उसका मतलब है मसल. ठीक है. So one contractile unit of such a muscle is called as a sarcomere, and this sarcomere contains two proteins. They are contractile proteins. मतलब ऐसे proteins which can bring about contraction. Okay, and उनके नाम है actin and the other one is myosin. Do you remember these names? I guess 10th standard में भी आया था ये word. Life process 1, if you remember. Amino acids का बनाया था, याद है? है ना? So you have to remember each skeletal muscle
each contractile unit is called as a sarcomere having two contractile proteins called actin and myosin. Okay, so actin के filaments होते हैं, myosin के filaments होते हैं. So let us take a look at both the filaments. सबसे पहले myosin filament. Okay, अभी myosin filament कैसा है कि see it is a polymerized protein. एक मायोसिन जो होते हैं वो बड़ा सा पॉलीमर है प्रोटीन्स का. ओके, एंड ईच मोनोमर, पॉलीमर मोनोमर का मतलब क्या हो गया, सिंपली स्पीकिंग कि इंडिविजुअल यूनिट्स हैं लाइक दिस. ओके, बहुत सारे, एंड दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ लॉन्ग पॉलीमर. जस्ट ऐसे समझ, अगर ये पूरा एक पॉलीमर है तो ईच यूनिट इज कॉल्ड एज अ मोनोमर. So myosin is a big polymer and each monomer is actually called as a meromyosin. Okay, MM करके बोलते हैं meromyosin. ठीक है, so each monomeric protein which is called as a meromyosin, it forms one thick filament. ठीक है, तो myosin molecule में there are two heavy chains present, जिसको बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन और HMM. ओके, ये देखना, ये जो टेल पोर्शन दिख रहा है, हाँ. एकदम बस रस्सी बांधा हुआ जैसे दिख रहा है ना. देयर इज वन टेल एंड देयर इज अ हेड. सो द इट फॉर्म्स अ डबल हेलिक्स. तो ये जो हैवी मीरोमायोसिन है, इन दिस मायोसिन मॉलिक्यूल दैट फॉर्म्स द टेल पोर्शन. ओके, एंड पूरे टेल्स का ऐसे डबल हेलिक्स डीएनए की तरह कॉइल हो जाने के बाद it gives rise to a head portion. Okay, and the head portion is a globular protein mass which is called as the myosin head. ठीक है, and ये जो मैंने बताया heavy meromyosin HMM, that's a part of the tail. The head portion consists of two light chains. Okay, so there are totally 4 light chains. ये जो दो खोपड़ी दिख रहा है ना यहाँ पे head में, two of them contain totally 4 light chains called light meromyosin, also called LMN. Okay, तो myosin का जो head है, this one shows ATPase activity. ATPase activity का मतलब है this head portion of the myosin can do this work of breaking down an ATP molecule, okay, splitting up into ADP and IP and releasing energy. You know ATP, energy currency of the cell. याद है ना? हाँ. Right. So one ATP can give how much energy in kilocalories? In kilocalories. Yep. Lipids में कि नहीं, one ATP when it is broken down, how many kilocalories of energy is given out? 40. It is 7.3. Okay, 7.3 kilocalories. अच्छा, ये respiration lesson हुआ नहीं है ना अभी तक, like 11th का? नहीं. हाँ, that's why. Okay, we will come back to. मुझे वो लिपिड्स और ग्लाइकोजन का लगा. नहीं, वो सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट है. ओके, ये एटीपी मॉलिक्यूल ना, एनर्जी करेंसी. ओके, ठीक है. सो ये जो मायोसिन हेड है, दिस इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू यूज एटीपी मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सी स्केलेटल मसल्स है, फंक्शन कर रहे, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे, तो एनर्जी तो लगेगा ही. दैट्स व्हाई व्हेन यू डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, हम लोग टायर्ड हो जाते हैं ना. इवन कुछ नहीं तो पैदल चल के भी आ गए. यू रिमेम्बर अम्बिलिटी टिट वाला जब हम गए थे, करेक्ट? So we had used so many skeletal muscles continuously for a long time. तो उस दिन हमारा कितना ATP यूज हुआ रहेगा, right? A large number, है ना? Especially the muscles of the legs, right? So it can split ATP, myosin head में, and this myosin contributes 55% of the entire muscle proteins. बाकी जो है वो actin. ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ये individual myosin filament has got this structure. बट ये ओवरऑल मसल का स्ट्रक्चर कैसा है देखा, कि बहुत सारे मायोसिन टेल्स, दे आर बंडल्ड टुगेदर टू फॉर्म द फाइबर्स, एंड सब में से ऐसे हेड प्रोजेक्ट हो रहे हैं. दिस इज हाउ द मायोसिन फिलामेंट अपीयर्स.
मायोसिन का समझा, हाँ HMM LMM दोनों, ठीक है। हाँ नाउ लेट्स कम टू द एक्टिन। ओके, अब एक्टिन कैसा है, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जैसे मायोसिन है वैसे एक्टिन, बट एक्टिन के 3 पार्ट्स है। ओके, डायग्राम में भी देखते जाओ, सी द पार्ट्स आल्सो। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्टिन या फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द एक्टिन इज समथिंग कॉल्ड एफ एक्टिन। ओके, अब ये डायग्राम में देखना, जो एक्टिन लिखा हुआ है दिस इज एक्चुअली द एफ एक्टिन। यहाँ पे कैसे दिखाया है, जो ब्लू में गोल गोल सर्कल्स जो दिखाए इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, तो ये पूरे एक्टिन फिलामेंट का मेजर पार्ट व्हाट यू कैन सी इज द एफ एक्टिन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बैकबोन। Okay, and it's a double stranded protein as you can see. Okay, so each strand of this F actin, it is made up of something called G actin molecules which are polymerized. Okay, तो G actin ये इंडिविजुअल एक गोल को अगर मैं निकालता हूं तो दैट्स अ G actin प्रोटीन, उसके बहुत सारे पॉलीमर्स दैट मेक्स अप द F actin। एंड ये जो ईच जी एक्टिन मॉलिक्यूल है इसके साथ प्रेजेंट है एक एडीपी मॉलिक्यूल, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। समझा ये पार्ट? हाँ ओके, मैनी एफ एक्टिन, मैनी जी एक्टिन molecules together forms the double helical part of the F actin, which forms the backbone of this entire actin filament. And each G actin contains one ADP molecule attached to it. Okay, ये पहला कंपोनेंट हो गया। सेकेंड वन इज समथिंग कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन, यू कैन सी दिस हियर। ओके, ये जो बीच में ब्राउन ऐसा लाइन दिख रहा है ना वो, तो ट्रोपोमायोसिन क्या है, दे आर सिंपली एडिशनल प्रोटीन स्ट्रैंड्स, इसका ऐसा लाइन करके दिखाया। ओके, एंड ट्रोपोमायोसिन करके ही कंपाउंड होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर है। तो chemically it is made up of many tropomyosin molecules, and each of this tropomyosin is connected to the actin. Okay, loosely attached, you can see that, right? So in the resting stage, when no work is done by that muscle, that time tropomyosin actin के साथ ऐसे connected है कि actin का जो binding site है उसको बंद करके रखा है। ओके, सी वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलेटल मसल्स जो वॉलंटरी का फंक्शनिंग करते हैं। तो वॉलंटरी फंक्शनिंग मतलब द ब्रेन हैज टू रेगुलेट दैट पर्टिकुलर मसल, कि जैसे मुझे फिंगर बेंड करना है कि नहीं करना है, ओके, लाइक हाथ पैर हिलाना है कि नहीं, सो ऑल दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन अल्टीमेटली। ओके, सो ब्रेन से जब तक स्टिमुलस आएगा नहीं ये काम होगा नहीं, दैट इज रेगुलेशन। So till the time, for that time when there is no stimulus from the brain, उसको हम बोलते हैं resting stage. So during that resting stage, ये ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ रहता है कि एक्टिन का एक्टिव बाइंडिंग साइट कवर्ड है, so that unnecessary stimulus आकर बिना रीजन के काम ना करते बैठे, that is ट्रोपोमायोसिन। Is this point clear? yes ठीक है। थर्ड वन इज समथिंग कॉल्ड ट्रोपोनिन। ओके, ट्रोपोनिन क्या है, ये जो ग्रीन में दिख रहा है, वेरी नाइसली रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, दैट इज ट्रोपोनिन, एक्टिन के साथ ही है। ओके, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, एंड ट्रोपोमायोसिन जहां पर है उससे अप्रोक्सीमेटली 2/3 डिस्टेंस पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट। ओके, तो ये ट्रोपोनिन इसका एफिनिटी है टू बाइंड विद एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एज वेल एज कैल्शियम आयंस। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए द रिक्वायरमेंट इज कैल्शियम आयंस। तो अपने डाइट में अगर कैल्शियम का कमी रहेगा तो मसल पेन भी लगता है। तो कैल्शियम आयंस, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, इनके जो मॉलिक्यूल्स है they are having the affinity with troponin part of the actin. Okay, and troponin क्या करता है दूसरा, this complex attaches the tropomyosin to the actin. ट्रोपोमायोसिन रेस्टिंग स्टेज में
एक्टिन को बाइंड करके रखा हुआ है, तो जो बाइंड करके रखने का काम है वो ट्रोपोनिन का। ओके, एंड troponin has got a very strong affinity for calcium ions. So whenever contraction has to be done, any kind of a voluntary activity has to be done, तो कैल्शियम आयंस का मूवमेंट होता है जो डायरेक्टली जाके बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ, एंड द कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है उसमें, दैट्स द रोल ऑफ ट्रोपोनिन। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि एफिनिटी ऑफ द calcium ions is the highest with dash, the answer is troponin. या तो troponin हम has ज्यादा चलते हैं तो फिर क्यों पैर दुखता है? अगर कैल्शियम की कमी नहीं है फिर भी नहीं चलते हैं ज्यादा तो see पैर a दुखता है ना? person who is like completely healthy, किसी तरह का deficiency नहीं है, still ultimately that person is an organism. तो किसी भी organism के functioning में एक upper limit तो रहेगा ही। It's not a machine or a robot ना कि वो चलता ही रहेगा, right? Because ultimately it is the usage of ATP ना। हाँ ATP का यूज हो रहा है काम करते वक्त, तो उतना ही स्पीड में ATP जनरेशन भी होना चाहिए बाय रेस्पिरेशन। तो काम करते करते अगर रेस्पिरेशन थोड़ा स्लो हो गया, ATP प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, बट ATP का यूसेज बढ़ गया, तो वो थकावट है। हाँ Getting it? So after the physical work that is done, when there is a tiredness and the muscles start paining, simply क्या करना है? The muscles have to be given a rest. तो रेस्ट दे देते हैं तो और ATP जनरेट हो जाता है, मसल्स आर नॉर्मल। कैल्शियम भी है, ओके कैल्शियम अगर नॉर्मल रहेगा तो ज्यादा टाइम तक काम कर पाएगा, कैल्शियम कम रहेगा तो कम टाइम तक काम कर पाएगा, बट अल्टीमेटली देयर इज सम कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, यस ओके, ये स्ट्रक्चर वगैरह समझा अच्छे से दिस पार्ट? हाँ ओके फाइन, जस्ट so we have seen the structure of the skeletal muscles with respect to myosin and actin both. Now let's take a look at the mechanism of the muscle contraction, कि वो कैसे अपना contraction करते हैं। तो just recollect like biceps and triceps. Okay, कि if I जैसे मैं अगर खड़े रह रहा हूँ and I have to lift something heavy, so I put my fingers around that object, जैसे कोई बैग उठा रहा हूँ and I pull, तो मेरा मेन काम जो कर रहा है वो है बाइसेप्स, करेक्ट? तो आई हैव टू यूज माय बाइसेप्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे अभी हमने बोले कि ज्यादा चलने से पैर दुखते हैं, दर्द होते हैं, उसी तरह अगर मैं कोई वजनदार चीज उठाऊं ज्यादा टाइम तो भी मुझे हाथ दर्द करते हैं, करेक्ट? दैट्स व्हाई यू हैव टू लीव इट फॉर सम टाइम। तो these are all the activities that we see in our daily life where muscle contraction takes place. कि सपोज 5 किलो का आटे का बोरी उठा के ला रहे, you can imagine how much stress will be there on the muscles, करेक्ट? जो गैस के सिलेंडर घर पे पहुंचाते, यू कैन इमेजिन कितने वजनदार सिलेंडर अपने कंधे पे उठा के चलते, हाथ से उठाते, राइट? सो देयर मसल्स मस्ट बी सो स्ट्रांग। हम एक दिन उठाने जाएंगे हॉल से किचन में लेके जाते तो यू नो व्हाट हैपेंस, राइट? हाँ तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अ मैकेनिज्म which has been studied very nicely, and उसके लिए एक थियरी प्रपोज्ड है जिसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, ओके, which was put forward by two people जिनके सरनेम सेम है, ओके, हक्सली एंड हक्सली। एक है H.E. हक्सली और एक है A.F. हक्सली। रिमेंबर द नेम्स, इजी टू रिमेंबर, राइट? एंड ये थियरी का दूसरा नाम है वॉक अलोंग थियरी, ऑल्सो कॉल्ड एज द रैचेट थियरी। ओके, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, वॉक अलोंग थियरी, रैचेट थियरी। ओके, तो यहाँ पे थियरी का मेन प्रिंसिपल क्या है कि whenever the muscle has to be contracted या वर्क कर रहे हैं, so there is an interaction, okay, between the actin and the myosin. एक ही skeletal muscle में actin myosin दोनों present है, but they are separated from each other, but when the contraction has to take place they both interact, okay? So it's like for example यहाँ पे दिया है देखना, क्रॉसिंग ऑफ फिंगर्स ऑफ टू हैंड्स, तो जैसे ऐसा,
ओके, तो उसमें एक हाथ वाला फिलामेंट एक्टिन का है तो दूसरे का मायोसिन, ऐसे इंटरडिजिटेड है एक्टिन मायोसिन के साथ। दिस इज द वे दे आर प्रेजेंट ओके इन द मसल। तो अभी कैसा है ना कि ये डायग्राम देख, वेरी नाइसली शो, ये मायोसिन ओके, एंड मायोसिन का ये हेड एंड ये ऊपर है एक्टिन। तो यू नो एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। तो हेड पोर्शन ऑफ द मायोसिन इज इन कॉन्टैक्ट विद द एक्टिन। ये नॉर्मल स्टेट है, समझा यहाँ तक? हाँ ओके, तो हेड ऑफ द मायोसिन इज जॉइंड टू द एक्टिन बैकबोन, there is a kind of a cross bridge which forms a hinge joint. ओके, ये हिंज जॉइंट अलग है जो अपने शरीर में, ये मसल्स के फिलामेंट्स का बात हो रहा है, ठीक है? सो इट्स लाइक द जॉइंट इज प्रेजेंट इन सच अ वे दैट द हेड कैन नॉट टिल्ट इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ये देखो, ये जो हेड है ना, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड करके ऐसा टिल्ट नहीं कर सकता। एक्टिन कैन मूव ओवर इट बट द हेड कैन नॉट टिल्ट। ओके, so that is the point. तो अभी कैसा है कि if the head has to move in backward and forward directions, so it is an active process जिसमें ATP का जरूरत है, ठीक है? And you know myosin head में हमने क्या पॉइंट बोला था कि this is the part which has got ATPase activity, कि ATP मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एंड ये ब्रेक ATP को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम it can be done only by the head of the myosin in the skeletal muscle. No other part of the muscle filament you can see ये काम कर सकते। Getting it? Okay, तो myosin head क्या करता है कि whenever the contraction has to be done, जब ATP का जरूरत है, तो myosin head is the one which will bring about the breakdown of the ATP. Okay, and जब कॉन्ट्रैक्शन करना है, सी व्हेन द मसल हैज टू बी कॉन्ट्रैक्टेड, इसका स्टिम्युलस आता है ब्रेन से या समटाइम्स स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, अगर रिफ्लेक्स एक्शन है, फॉर एग्जांपल, आर यू अवेयर अबाउट समथिंग कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन? हाँ क्या होता है मैं रिफ्लेक्स एक्शन? अम, हमने कुछ किया तो उसका रिफ्लेक्स। फॉर एग्जांपल जैसे कोई गर्म इस्त्री रखा हुआ है कपड़े प्रेस करने के लिए, एंड बाय हाँ चांस योर फिंगर्स टच इट, तो क्या करते हैं? तो हाँ हमारा हाथ हटा देते हैं। तुरंत हटा देते हैं। एंड इट इज हाँ नॉट अ काइंड ऑफ अ वॉलंटरी रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं कि टच किया 2 मिनट सोचे नहीं गर्म है हाथ हटाना चाहिए, नहीं ना, इट इज स्पॉन्टेनियस, यू डोंट रियलाइज। गेटिंग इट? वो रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ऐसे एक्शंस के लिए द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, वो रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम ब्रेन नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ओके, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड कैसा है कि शरीर में थोड़े चेस्ट रीजन में, लोअर पार्ट में, एज कंपेयर टू द ब्रेन। सो स्टिम्युलस का वहां पे डिसाइड होके रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए द टाइम रिक्वायर्ड बिकम्स कंपैरेटिवली लेस। सो ऐसे केस में स्टिम्युलस आएगा स्पाइनल कॉर्ड से, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज द ब्रेन इज इन्वॉल्व। सो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड जब से स्टिम्युलस आएगा, तो इट द स्टिम्युलस विल बी फर्स्ट रिसीव्ड बाय द मायोसिन। स्केलेटल मसल्स के मायोसिन को स्टिम्युलस मिलेगा कि अभी कॉन्ट्रैक्शन करना है। गेटिंग इट? देन व्हाट विल हैपन इज कि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब मायोसिन का हेड will attach to the active site of the actin, that is the F actin. Okay, जो F actin है उसके साथ वो मायोसिन का हेड बाइंड कर देगा। Getting it? You can see डायग्राम में चारों पार्ट देखना, you can see this मायोसिन हेड। ओके, ये एक्टिव साइट से बाइंड हो गया। Getting it? And then what will happen, ये बाइंड हो जाने की वजह से एक्टिन जो है, जो पहले से ऊपर की तरफ था, अब वो आगे स्लाइड करते हैं। तो एक्टिन का मायोसिन के ऊपर स्लाइड करने का जो काम है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए उसको बोलते हैं स्लाइडिंग थियरी या वॉक अलोंग, कि एक्टिन वॉक्स अलोंग द मायोसिन। गेटिंग इट? तो जब मायोसिन हेड
एक्टिन के एक्टिव साइट को बाइंड करेगा, वो स्लाइड करेगा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। एंड ये करने के लिए एटीपी का जरूरत है जो मायोसिन का हेड करता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। ठीक है, ये फ्लो चार्ट भी देख, वेरी नाइसली इट इज गिवन। अभी यू रिमेम्बर ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, इनका भी क्या रोल था यहाँ पर? ट्रोपोमायोसिन इज नॉर्मली कवरिंग द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन, ओके, एंड ट्रोपोनिन क्या करता है? एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करते, इन तीनों को कोऑर्डिनेट करते, ओके। तो जब ये मायोसिन के हेड को एक्टिन के एक्टिव साइट से बाइंड करना है, तो ट्रोपोनिन को वहां से हटाना होगा, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो ये भी कोऑर्डिनेशन देख ले कि सबसे पहले देयर इज एन इम्पल्स, it is always the motor nerve which will give the impulse to the muscle to contract, ठीक है। जैसे ही इम्पल्स आएगा रेस्पॉन्स के लिए कि ऐसा ऐसा मूवमेंट करना है करके, सो मसल्स के टी ट्यूब्यूल में, ओके, इन द मसल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ टी ट्यूब्यूल मायोसिन का, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाते हैं कि काइंड ऑफ एक्टिवेट कर दिया, ओके। देन द टी ट्यूब्यूल will release something called calcium ions. मसल्स के सेल्स के साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, ओके। तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाएंगे टी ट्यूब्यूल की वजह से, बिकॉज ऑफ विच ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स में चेंज आ जाएगा, जो रेस्टिंग स्टेज में नहीं था उससे, जो रेस्टिंग स्टेज में था उससे अलग। रेस्टिंग स्टेज में एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है वो कवर्ड थे, अब ये ऐसा चेंज आएगा कि कवर हट गया, ओके। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स विल undergo that change, okay, active sites of the actin filaments now become uncovered, ये जरूरी है ना। जब ये अनकवर हो जाएगा तो मायोसिन का हेड will break down the ATP, okay, and the head of the myosin will attach to the active site of the actin, तो actin myosin complex बनेगा। जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मायोसिन का हेड विल टिल्ट इन सच अ वे कि एक्टिन फिलामेंट्स को अपनी तरफ खींचेगा, एंड देन एक्टिन विल स्लाइड ओवर द मायोसिन, कॉन्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस। समझ रहा है क्या हुआ मसल के अंदर? हाँ मतलब यस आई नो इट इज स्लाइटली बियॉन्ड, ध्यान से सुनिए, फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ, ओके। वंस अगेन, मोटर नर्व जो या तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, वो सबसे पहले स्टिम्युलस लाएगा कि यस कॉन्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो जब उसको कॉन्ट्रैक्शन करने का परमिशन मिल गया, सो मसल्स के टी ट्यूब्यूल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, कि मतलब वो ट्रिगर सेट हो गया कि यस इट इज लाइक अ इनिशिएशन, कॉन्ट्रैक्शन बिगिन करना है। कॉन्ट्रैक्शन बिगिन करने के लिए द रिक्वायरमेंट इज कैल्शियम आयंस, तो टी ट्यूब्यूल विल रिलीज, उसमें कैल्शियम आयंस रहते हैं हमेशा, बट वो सार्कोप्लाज्म में डालेंगे, ओके। सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस डालने की वजह से ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, ओके, जस्ट फिजिकल डिफॉर्मेशन यू कैन सी, वो ऐसा चेंज आएगा कि नाउ द एक्टिन फिलामेंट्स, उसके जो एक्टिव साइट है, पहले ऐसा था कि वो बंद करके रखे थे, तो बिना रीजन का, बिना परमिशन का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, गेटिंग इट। बट बाद में क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट्स का एक्टिव साइट अनकवर हो गया, तो जब वो अनकवर हो गए तो मायोसिन का हेड कैन अटैच टू इट, मायोसिन का हेड का एक्टिन के साथ अटैच हो जाएगा तो एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, and head of the myosin can break the ATP molecule, energy can be produced, वो एनर्जी को यूज करके एक्टिन फिलामेंट विल स्लाइड ओवर द मायोसिन, तो मसल विल बी कॉन्ट्रैक्टेड। अभी समझा? हाँ ओके,
तो जैसे ये सार्कोमियर है, ओके, दिस इज, ये दोनों ब्लू लाइंस देखना। तो यू हैव अ थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट। थिक वन इज मेड अप ऑफ मायोसिन, थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन। ओके, तो यू कैन सी अल्टरनेट, जैसे मैंने ये बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिन मायोसिन ऐसा है, ये रेगुलर स्टेट में। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है लेंथ में छोटा होना है, तो एक्टिन हैज टू मूव ओवर द मायोसिन। ये दिख रहा है, अभी एक्टिन और मायोसिन कितना डिस्टेंस है देख, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक्टिन कितने अंदर आएंगे। तो इट्स जस्ट अभी जैसे ऐसा है, ऐसा, ठीक है, तो ये ऐसा 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 हो। हाँ अभी समझ रहे हैं, दैट इज हाँ रिलैक्सेशन एंड अभी समझ। कॉन्ट्रैक्शन। अभी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट काम हो जाने के बाद रिलैक्स भी होना है, तो रिलैक्सेशन ऑल्सो रिक्वायर्स एटीपी, because the actin filaments have to be pulled back, and exactly the reverse process will take place. Okay, रिलैक्सेशन हो जाएगा तो मायोसिन के हेड को डिटैच करना भी उतना ही जरूरी है। गेटिंग इट? तो कैल्शियम आयंस, अभी क्या होगा कि पहले क्या हुआ था, कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में रिलीज किया गया था, बिकॉज ऑफ विच ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिन से हट गया। अभी कैल्शियम को पकड़ लिए, तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स विल अगेन गेट दैट चेंज कि वो एक्टिन के ऊपर बाइंड करेगा। ओके, एंड फिर से जब एक्टिन के ऊपर बाइंड कर देगा तो उसका एक्टिव साइट कवर हो गया, मायोसिन का हेड उससे सेपरेट हो गया, एंड ये कॉम्प्लेक्स वापस रिलैक्स हो गया। ओके, एंड ये दूर करने के लिए भी अगेन द हेड ऑफ द मायोसिन विल ब्रेक डाउन द एटीपी एंड डिराइव एनर्जी। ओके, जिसके वजह से देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ द मसल फाइबर्स। तो कॉन्ट्रैक्शन हो या रिलैक्सेशन हो, द हेड ऑफ द मायोसिन इन बोथ द केसेस हैव टू ब्रेक द एटीपी एंड प्रोड्यूस एनर्जी। ये उसका रिलैक्सेशन है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज सेड लाइक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन इज आल्सो एन एक्टिव प्रोसेस। तो पहले वाले में कैल्शियम आयंस को सार्कोप्लाज्म में डाला जाता है, जिसकी वजह से एक चेन क्रिएट होता है। दूसरे वाले में कैल्शियम आयंस को रिमूव किया जाता है, तो रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस, एकदम रिवर्स प्रोसेस। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट वंस यू इमेजिन द प्रोसेस इट इज वेरी इजी। वो स्टेप्स याद रखना, एंड ये फ्लो चार्ट काफी अच्छे से दिया हुआ है, दैट शुड बी इनफ। ठीक है, ये जो पॉइंटर्स दिया है ना, ये ऐसे याद रखना। ओके, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। ठीक है, ओके, देयर इज अ टर्म कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ का मतलब है कि now in this entire physiology of contraction and all that we saw, the main point was use of ATP. तो ATP को अगर यूज किया जा रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है, तो ATP कहीं ना कहीं जनरेट होना है, and that takes place in the mitochondria where respiration takes place. तो जैसे अभी as we said कि if the work done exceeds the amount of the oxygen required to produce the ATP, then it's an oxygen depth. Okay, एंड मसल्स में कभी कभी क्या होता है कि अगर एक्स्ट्रा वर्क कर लिए बहुत ज्यादा, सो नॉर्मली अपने मसल्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बट व्हेन द रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस इट विल टेम्पररी स्विच ओवर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जब करेंगे अपने मसल्स के सेल्स, तो इट विल प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड लैक्टिक एसिड, एंड ये लैक्टिक एसिड तब यूज होगा जब मसल विल गो बैक टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो लैक्टिक एसिड को एरोबिकली यूज करना शुरू करेंगे, ऑक्सीडाइज करना शुरू करेंगे, उस चक्कर में क्रिएटाइन फॉस्फेट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, तो लैक्टिक एसिड एंड क्रिएटाइन फॉस्फेट, these two can cause muscle pains. That's why doing physical work is good, करना ही चाहिए, muscles have to be constantly in use, but over physical work can lead to muscle pains. कि जैसे if you don't have the habit of carrying out exercise daily and suddenly one fine day इतना exercise करना शुरू कर दिए
ऑफ कोर्स इट विल लीड टू लॉट ऑफ बॉडी पेन्स। कभी जिम ज्वाइन किया है? नहीं, हाँ वो आपके साथ गई थी। हाँ okay. तभी इतना चला अच्छा ओके, कंपटीशन। कंपटीशन हाँ के हाँ लिए। okay. हाँ, हाँ अभी उतना चला था, उस दिन पता चला ये राइट। सो फर्स्ट डे पूरा बॉडी। करेक्ट है। तो फर्स्ट डे तो कैसे हो गया ना एकदम से, हाँ। because of the lockdown there was hardly any work being carried out and suddenly one fine day अपना इतना एक्सरसाइज वगैरह हम लोग चढ़े उतरे है ना। फिर उसके बाद आदत हो गया, आदत हो कितना भी चल रहे थे थक नहीं रहे थे। दैट्स द रीजन वी वर एबल टू, फोर्थ डे तो हम लोग कितना वॉक कर लिए हाँ। ना, हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा हमने कर लिया इतना। बट वो अगर इतना फर्स्ट डे करते तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। हाँ। तो दैट्स हाउ मसल्स वर्क। इसलिए जब भी कैसे जिम ज्वाइन करते हैं या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट इज ऑलवेज डन इज वार्म अप। स्कूल में भी याद है एक्सरसाइज वगैरह कराते रहेंगे तो उसको वार्म हाँ। अप बोलते हैं। वार्म अप मतलब क्या, जैसे जिम ज्वाइन किए ओके, तो वो जो वेट्स उठाने का रहते हैं ना, डंबल्स देते हैं या वेट्स हाँ। उठाते राइट, वो सडनली पहले ही दिन अगर उसने 75 किलो रख दिया, बोले इसको उठा, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट इज डेंजरस। तो सबसे पहले क्या करना होता है, वार्म अप। वार्म अप मीन्स व्हाट, कि सिंपल बेसिक एक्सरसाइज, कि हाथ पैर स्ट्रेच कर लिए, थोड़ा कूद लिए, है ना, गले को ऐसा ऐसा किए, दीज आर ऑल वार्म अप, कि सारे मसल्स एक आध बार हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस हो गए, सो दे आर एक्टिवेट एंड दिस हैज टू बी डन फॉर सम लॉन्गर टाइम, है ना। घर में भी अगर हम सिंपल एक्सरसाइज करना शुरू किए, सपोज प्लान किए कि चलो कल से एक्सरसाइज करेंगे ओके, तो यू हैव टू ऑलवेज बिगिन विथ लाइट एक्सरसाइज। पहले 10 मिनट किए सिंपल, जितना होगा उतना, स्लाइटली आउट ऑफ द कंफर्ट जोन बट नॉट टू मच, एंड देन धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना। दैट्स हाउ द वर्कआउट इज डन, बिकॉज द मसल्स also have to get habituated ना। ये उसका प्रिंसिपल, कि अगर एक साथ जरूरत से ज्यादा कर लिए, मसल्स ने आज तक इतना काम किया ही नहीं था, सडनली हमने इतना करवा दिया, तो एरोबिक रेस्पिरेशन से वो सीधे एनारोबिक पे चला जाएगा, and there will be too much accumulation of lactic acid that leads to the muscle pains। ठीक है, एंड यहाँ पे हम मसल के बारे में बात कर रहे हैं, बट मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि व्हेन यू डू एक्सेसिव वर्क मोर देन योर कैपेबिलिटी, तो बोन्स एंड मसल्स के अलावा टेंडन्स एंड लिगामेंट्स भी होते हैं ओके। एनिमल टिश्यूज में हम देखेंगे, बट टेंडन इज दैट टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स अ बोन टू अ मसल and ligament is the one that connects two bones। तो joints में tendons and ligaments are also included। तो कई बार क्या हो जाता है कि इतना ज्यादा वर्कआउट करने की वजह से टेंडन फट जाते हैं या लिगामेंट्स टेयर हो जाते हैं। हाँ, मतलब वो कुछ मसल डंबल्स उठाते हैं तो हाँ कभी कभी ये और कुछ फट जाता है ना हाथ में, यस, सी तो डंबल जब वो क्या उठाते हैं टेंडन। हाथ में ऐसे उठाते हैं हाँ। करेक्ट, तो उसका हाँ। भी एक स्पीड के साथ छोड़ना चाहिए। अभी इतना मेहनत हाँ। करके उठा लिया, उसको एक झटके में ऐसा छोड़ दिया, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन एकदम टेरिबल हो जाएगा, नोट लिगामेंट टेयर होने के चांसेस। ओके, यू मस्ट हैव सीन रेसलर्स जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, बड़ा वाला उठाते हैं, एकदम जमीन से उठाते एंड देन हाँ। ऐसे सिर के ऊपर लाते हैं करेक्ट, तो उसको जो वापस रखना होता है, सर के ऊपर लाया मतलब कितना कॉन्ट्रैक्टेड है मसल्स, एंड देन व्हेन यू प्लेस इट डाउन, वो स्लोली करना है, उसको एकदम धड़ाम से छोड़ दिया, देन इट विल बी अगेन डेंजरस। तो हाँ। मसल वर्किंग जो है उसका रेट, वो भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। Okay, like there should not be a sudden work done and there should not be a sudden relaxation also, it can be dangerous। बट मसल्स के लिए ये जिम अच्छा है कि एक्सरसाइज योगा वो सब? see it depends, सब अच्छा है, but the main point is कि if you begin doing something, वो uniformly consistently करना है, ये प्लानिंग जरूरी है। कि सपोज आज मैंने सोचा कि मैं घर पे पहले एक्सरसाइज शुरू करूंगा 1 मंथ, तो मैंने कल किया, परसों किया, फिर 3 दिन नहीं कर पाया, देन अगेन फोर्थ डे आई एम डूइंग इट, तो ऐसा अगर ब्रेकअप हुआ बीच में तो इट इज नॉट गुड। So if you are sure that every day you can take out 10 minutes time, do some exercise, then do it daily, तब अच्छा है। ओके। जिम का भी ऐसे ही है,
जिम खुला रहेगा सुबह से शाम तक, बट यू मस्ट गो एट अ हाँ रेगुलर फिक्स्ड टाइम, एंड वो कंसिस्टेंटली करना है, बिकॉज अगर उसका आदत छूट गया ना बीच में, देन इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। हाँ ओके, कंसिस्टेंटली करो तो इट इज गुड, तो यू हैव टू डू इट दैट। तो या तो घर पे करना है या तो बाहर, बट एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट गो ऑन, वॉकिंग इज द बेस्ट, है ना। तो जैसे अभी हाँ मौसम वो सुबह होता के है। टाइम पे बेस्ट, करेक्ट, तो वॉकिंग इज हाँ ऑलवेज मेरा द सुबह ही बेस्ट। क्लास होगा। यस एग्जैक्टली, क्लासेस भी उधर ही है ना, घर के पास ही है। पास में स्टेशन के थोड़ा आगे। ठीक है, तो वॉकेबल डिस्टेंस पे, है ना, तो दैट हाँ इज गुड, तो यू कैन ऑलवेज वॉक, साइकिलिंग इज बेस्ट, जॉगिंग इज गुड, एंड इन सब के अलावा बोलते हैं कि सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कि इन हाँ सब वो का ना बहुत अच्छा कोरिलेशन होता है अपने ब्रीदिंग के साथ। ओके, नॉर्मली ऑब्वियसली हम ब्रीथ करते ही हैं, बट वी डोंट डू इट कॉन्शियसली। यहाँ पे ब्रीदिंग के बारे में बोल रहा हूँ तो इट इज अ कॉन्शियस ब्रीदिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, कि यू शुड इनहेल फुल्ली एंड यू शुड एक्सहेल फुल्ली। तो कॉन्शियसली अच्छे से 10 मिनट्स तक पूरा ब्रीदिंग किए ना, तो यू आर टेकिंग द मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटू योरसेल्फ, वो सारे सेल्स के लिए अच्छा। तो दैट इज समथिंग आल्सो यू कैन बिगिन विथ। ये सब चीजें बहुत अच्छा है, बट सही तरीके से सही टाइम पे कंसिस्टेंटली करना है, देन ओनली इट विल गिव द बेनिफिट। ठीक है, ओके। हैव यू हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड रिगोर मॉर्टिस? नहीं। हैव यू सीन अ ह्यूमन डेड बॉडी? मतलब वाइट कपड़े में या यूज में ऑब्वियसली, देखा है। यस, मतलब जो रिचुअल्स वगैरह करते हैं उस टाइम पे हाँ जैसे। रिचुअल्स करते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है ना यहाँ पर, कि व्हेन अ पर्सन इज लिविंग एंड ड्यूरिंग हाँ द स्टेट ऑफ लिविंग, एटीपी का फ्रेश सप्लाई पॉसिबल, प्लस अ पर्सन इज हम्म ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो एटीपी बन गया, तो दैट टाइम द मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, रिलैक्स्ड, एंड वो एक अलग ही स्टेट होते हैं। बट व्हेन अ पर्सन इज डेड, ओके, तो जैसे पर्टिकुलर टाइम पे डेथ हो गया, तो जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रह जाएंगे, तो बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाता है। वो स्टिफनिंग इसलिए क्यों होता ब्लू है? या ब्लैक कलर का हो जाता है वो भी क्या? हो जाता है बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन भी बंद हो जाते हैं, तो ऑल द सेल्स हाँ दे सेटल डाउन एट वन प्लेस, रेस्पिरेशन बंद हो गया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो रिलैक्स नहीं हो पा रहा। ओके, दैट इज द रीजन, कभी टीवी में देखा रहेगा कि इफ अ पर्सन डाइज, तो जनरली उसके आंखें पहले बंद कर देते हैं, हाँ वो क्यों करते हैं? बिकॉज मतलब आईलिड्स के मसल्स अगर माइथोलॉजी में कॉन्ट्रैक्ट, है। नहीं नहीं, आईलिड्स के मसल्स माइथोलॉजी अगर में है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं कर पाए ना, आत्मा आ जाएगा। हाँ वो बिलीव्स है अलग अलग, तो साइंटिफिकली वी कैन नॉट हाँ से एनीथिंग अबाउट दैट। ओके, बट मेन पॉइंट क्या है ना, आईलिड्स के मसल्स बाद में इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि बाद में बंद नहीं हो पाएगा, एंड इट माइट लुक स्कैरी ओके। आल्सो, तो उसके लिए पहले हाँ वो, ओके, तो वो कंडीशन जो होते हैं कि आफ्टर डेथ मस्कुलर स्टिफनिंग विच टेक्स प्लेस, उसको बोलते हैं रिगोर मॉर्टिस। ऐसे भी सो नाउ कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी चाहिए, तो रिलैक्सेशन के लिए भी एटीपी चाहिए, तो रिलैक्स करने के लिए एटीपी है ही नहीं, लोकल जितना एटीपी स्टोर बचा हुआ है वो सब यूज हो जाते हैं, उसके बाद कोई एटीपी नहीं रह जाते, तो मायोसिन हेड एक्टिन के साथ ही जुड़ा हुआ रह जाता है, ओके, एंड वो परमानेंट स्टेट में रह जाते हैं। बट दिस रिगोर मॉर्टिस इज समटाइम्स अ यूजफुल कंडीशन टू फाइंड आउट हाउ मेनी आवर्स हैव पास्ड फॉर बिफोर द डेथ, उसको रिगोर मॉर्टिस बोलते हैं, समझा? ठीक है, हाँ दैट इज अ कंडीशन। ओके, नाउ अभी एक लास्ट पार्ट जो मस्कुलर इसका बचा हुआ है, that is about the characteristics या properties of muscles, okay, on electrical stimulation. Electrical stimulation means जो nervous impulse आता है central nervous system से, तो क्या क्या properties है? सबसे पहले single muscle twitch, okay, कि muscles को contraction initiate करने के लिए one brief stimulation is enough, okay, तो वो होता है 3 stages में, ठीक है।
there is a latent period of no contraction, then there is the actual contraction period, okay, and there is a relaxation period. Am I audible, Sneha? हाँ अभी हाँ, बीच में कुछ फ्रीज हो गया था ना, ठीक है। तो ये कुछ आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया इधर बीच में। ओके ओके, तो सिंगल मसल ट्विच का मतलब है कि देयर इज अ वन सिंगल ब्रीफ स्टिमुलेशन इज इनफ टू ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को बार बार नहीं बोलना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कर, कॉन्ट्रैक्ट, एक बार बोलो वो समझ जाते हैं, ओके। एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन स्टिम्युलस इज इनफ फॉर 3 स्टेजेस, कि पहले नो कॉन्ट्रैक्शन, देन कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, कि रिलैक्सेशन के लिए फिर से स्टिमुलस देने की जरूरत है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सिंगल मसल ट्विच। सेकंड इज समेशन, ओके। समेशन क्या है कि एक ट्विच के एंड के पहले मसल को फिर से स्टिमुलस दिया तो उससे वजह से होता है ग्रेटर टेंशन। दैट इज एक के बाद एक अगर स्टिमुलस आएगा तो सारे स्टिमुलस का बिल्डअप या एडेड स्टिमुलस जो होगा दैट विल बी रिपीटेड स्टिमुलस। तो जैसे यहाँ पे दिया स्टेयरकेस फिनोमेनन, यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस, ओके। तो एक स्टिमुलस मिला एक पैर उठा के ऊपर रखने के लिए, दूसरा स्टिमुलस मिला दूसरा पैर उठा के ऊपर रखने के लिए। तो टिल द टाइम यू क्लाइंब ऑल द स्टेयर्स देयर इज अ कंटिन्यूअस स्टिमुलस, एंड व्हेन यू रीच द टॉप यू आर कवर्ड ऑल द स्टेयरकेस। तो सबसे ऊपर पहुंचने के बाद फिर से वो स्टिमुलस नहीं आएगा कि पैर ऊपर रखना है, देन इट इज अ प्लेन सरफेस। तो ऐसे सारे स्टिमुलस बिल्डअप होते हैं, ऐड होते हैं। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड समेशन या एडिशन, ठीक है। देन है टेटानस। टेटानस का मतलब है कि द स्टिमुलेशन इज वेरी रैपिड एंड वेरी फ्रीक्वेंट, कि मसल्स को रिलैक्स करने का टाइम नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्शन वाले स्टेट में ही रह जाते हैं, जिसको टेटानस बोलते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स? यस ठीक है, दैट इज टेटानस, कि अगर एकदम रैपिड स्टिमुलस है तो टेटानस फॉर अ लॉन्ग टाइम इज ऑब्वियसली नॉट गुड, ओके। देन है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब है कि एक स्टिमुलस मिला, मसल ने एक पूरा कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन कर दिया, बिफोर द सेम मसल gets another stimulus to do another contraction, एक brief resting period होता है बीच में, which is just for about 0.02 seconds normally. उस brief resting period को बोलते हैं refractory period, ओके। कि नॉर्मली ऐसे स्टेट में मसल फाइबर दूसरे स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड नहीं करता, ओके। एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, एंड देन नेक्स्ट स्टिमुलस। इट्स अ वेरी ब्रीफ पीरियड, यू कैन सी 0.02 seconds, ठीक है। ये टर्म को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, ओके। देन नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब है कि व्हाटएवर स्टिमुलस इज गिवन फॉर द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, उसका एक मिनिमम स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी जरूरी है, ओके। अगर उससे कम इंटेंसिटी का स्टिमुलस आएगा तो इट इज एज गुड एज नॉट गेटिंग अ स्टिमुलस। तो एक मिनिमम इंटेंसिटी के साथ ही स्टिमुलस मिला तो वो फंक्शन करेंगे एंड कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। दैट इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। देन है ऑल और नन प्रिंसिपल, कि थ्रेशोल्ड से कम अगर स्टिमुलस रहा तो नो कॉन्ट्रैक्शन, थ्रेशोल्ड मिनिमम पे रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस। बट थ्रेशोल्ड से अगर ज्यादा इंटेंसिटी का भी स्टिमुलस आया तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो। मिनिमम थ्रेशोल्ड या मैक्सिमम चाहे कितना भी हो, कॉन्ट्रैक्शन का जो इंटेंसिटी है दैट विल बी द सेम, एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन विल बी विद द मैक्सिमम फोर्स, ओके। तो या तो मसल फाइबर पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसलिए उसको ऑल या नन बोलते हैं। तो कम कॉन्ट्रैक्ट किया, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसा नहीं होता, बट थ्रेशोल्ड से कम में रहेगा तो नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो मसल फाइबर्स एज वेल एज नर्व फाइबर्स दे बोथ ओबे दिस लॉ कॉल्ड ऑल या नन प्रिंसिपल,
समझा ये पॉइंट? हाँ। ठीक है। देन है ऑक्सीजन डेप्थ, तो अभी हमने डिस्कस किया कि व्हेन द रैपिड रिक्वायरमेंट ऑफ द मस्कुलर एक्टिविटी, नॉर्मली जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इन सच अ स्टेट इट विल स्विच ओवर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, more amount of ATP is generated, lactic acid is produced, and lactic acid generally कम ATP produce करता है, at the same time it is also toxic. Okay, तो normally इसलिए lactic acid production ज्यादा होना नहीं चाहिए, muscle pain हो जाएगा, तो tiredness, pain and muscle cramps will take place. तो इसको recover करने के लिए when the muscles are given the rest, तो recover करने के लिए ऑक्सीजन का requirement ज्यादा हो जाता है. That oxygen consumed during the recovery is called oxygen depth of the muscle. Is it clear? Yes. ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज याद रखना. ओके. हाँ. Okay, just take last part over here. You remember school में, science में, you had something called simple machines, physics में. हाँ. You are aware about these words called resistance, fulcrum, effort. Resistance, fulcrum. fulcrum नहीं सुना मैंने. Okay. जैसे simple बाकी तो example, you know a pulley, कुएं से हाँ, पानी पुल्ली निकालने पता के है. लिए हाँ 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 एक एंड हाँ में बकेट होता है, एक एंड में हाँ रस्सी हाँ. खींचते हैं, है ना. तो जस्ट इमेजिन समथिंग लाइक दैट. ये जस्ट एक एग्जांपल है. ओके, जिसमें हम लोग लीवर करके बोलते हैं. लीवर हैज गॉट थ्री Okay. पार्ट्स, फल्क्रम, रेजिस्टेंस एंड एफर्ट. ओके, एफर्ट मींस जहां पर फोर्स एक्ट होता है. फल्क्रम इज द पॉइंट ऑफ मूवमेंट यू कैन सी, एंड रेजिस्टेंस इज द वन which is the point जहां से रिलैक्सेशन होगा मूवमेंट के बाद. Okay, so there are three such types of lever depending upon the position of the fulcrum, resistance and effort. तो class 1 जो lever होता है, here the fulcrum is in the center, effort and resistance are on both the sides. तो इस तरह का joint अपने vertebral column में, अपने first vertebra with the occipital condyle, you remember this atlas joint, हाँ. है ना. तो atlas मतलब कैसा, हम लोग आगे पीछे मूव करते हैं. हाँ. यहाँ पर एफर्ट उसमें है, हाँ, बीच में वो फल्क्रम लीवर है. फिर पुली जैसा होगा, मतलब एग्जैक्टली, आगे किया यस, तो उठेगा पीछे. हाँ. करेक्ट. तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बैक मसल will provide the force. Okay, while the part of the head that is raised act as the resistance. तो ये इस तरह का मूवमेंट हुआ. तो फल्क्रम सेंटर पे, एफर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों साइड. ये तो एक क्लास 1 लिवर. इस तरह से हम कंपेयर करेंगे सिंपल मशीन से, नथिंग एल्स. ओके, सिमिलरली इफ यू सी क्लास 2 लिवर फीट में, so here effort is on one side, resistance in the center, fulcrum on one side. तो पूरे अपने टोस के ऊपर पूरा शरीर खड़ा हुआ है. when you are standing, the toes and the feet upon which the entire body is raised. तो यहाँ जो मसल्स हैं behind the, ये कौन से बोन है below the knee? एंकल वाला. नहीं नहीं, ये जो below the knee, पटेला के नीचे वाला बोन. हाँ. कौन से दो बोन्स हैं यहाँ पर? यू से था ना कुछ तो. रेडियस. रेडियस हाथ में, ओके. ये हाइंड लिम्स है. क्या था ना. टिबिया फिब्यूला याद है? हाँ, टिबिया फिब्यूला. है ना. तो टिबिया फिब्यूला के साथ जो मसल्स हैं यहाँ पे, तो मैंने पर्सन इज स्टैंडिंग, तो एफर्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं? इन मसल्स पे. ओके, एंड बीच में क्या है? रेजिस्टेंस, कि टोस के ऊपर. अभी जैसे टोस में ऐसा रहता है, हील्स पहन ली है तो टोस पे ऐसा प्रेशर आ गया. गेटिंग इट? हाँ. तो रेजिस्टेंस इज ऑन द बैक. ये इस तरह सिंपल. ठीक है. क्लास 3 लीवर में एफर्ट इज इन द सेंटर, रेजिस्टेंस फल्क्रम ऑन बोथ द साइड्स. तो एल्बो जॉइंट. ठीक है, कि रेडियस एंड अल्ना विल प्रोवाइड द रेजिस्टेंस
एंड बाइसेप मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन से फोर्स जनरेट होता है। तो लाइक दैट अपने शरीर में क्लास सिंपल मशीन से कंपेयर किया इन जॉइंट्स को, तो यू हैव क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 लीवर। जस्ट अ कंपैरिजन और अ कोरिलेशन, नथिंग मच। समझा ये पार्ट? हाँ ठीक है, तो ये भी याद रखना। ओके, सो विद दैट वी हैव completed the discussion about muscles, skeletal muscles, their structures, their composition, okay, the working mechanism with respect to movement and locomotion. Okay, अच्छी तरह समझा ये पार्ट? हाँ अब इस लेसन में एक ही रह गया है, वो है joints. Okay, so discussion about the joints we can do at a stretch and ये लेसन फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग हाँ, तो है ना? तो बड़े बड़े और करने पड़ेंगे वो यार। तो करना ही पड़ेगा, वो तो बस यहाँ जैसे मैंने बताया कि यू कैन मेक योर ओन नोट्स। एम आई ऑडिबल?